جو منایا گیا جو بائبل میں ہے اس کی طرف غور کریں گے کہ کس طرح اس کرسمس پر لوگوں نے فرشتوں نے خدا نے اپنے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیا اور خدا کا بیٹا یسوع ناصری اس زمین پر اتر آیا. ہاللیلویا. ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور یہ پورا اقتباس ہی ہے لیکن میں صرف ایک دو آیت پڑھ کر جو ہے وہ کلام کو شروع کروں گا. پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے غور کیجئے گا. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. سب کہو آمین. میرے بہنوں اور بھائیوں یہ جو حوالہ ابھی میں نے پڑھا یہ آپ نے بہت دفعہ جو ہے وہ سن رکھا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کے موقع پر سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے. مریم کا اپنا رول جو یوسف کا اپنا رول چرواہوں کا رول مجوسیوں کا. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس جو پہلا منایا گیا اس کے اندر جو سب سے بڑا رول تھا وہ روح القدس کا تھا. کس کا تھا؟ روح القدس کا. اگر روح القدس نہ ہوتا اگر پاک روح نہ ہوتا تو کرسمس بھی نہ ہوتا. آج ہم جو کرسمس منا رہے ہیں یہ حقیقت کے اندر خدا کے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے ہے خدا کے زور کے وسیلہ سے ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں ایک کنواری لڑکی کے پاس ایک فرشتہ آیا اور یہ چھوٹا فرشتہ نہیں تھا یہ بہت بڑا فرشتہ ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ خدا کے پیغامات کو جو وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے. پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ اور بلکہ مکاشفہ کی کتاب تک جو ہے وہ آپ کو جبرائیل کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح خدا کے پیغامات کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچاتا ہے. اور یہ فرشتہ ایک گاؤں کے اندر رہنے والی ایک کنواری جو حقیقت کے اندر واقع ہی کنواری تھی. یہ واقع ہی کنواری کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا جو ہے انسان کو جب چنتا ہے تو وہ انسان کی نگاہ سے نہیں چنتا بلکہ وہ اپنی حکمت اور اپنی جو ہے وہ عقل سے چنتا ہے. اور ہمارے خدا سے بڑی اور کسی کی حکمت جو ہے وہ نہیں ہے. یہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سلام تجھ پر. اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ فرشتہ مریم کو سلام کر رہا ہے. دنیا جہان کے اندر بہت سے جب رسول پیدا ہوئے نبی پیدا ہوئے پیغمبر پیدا ہوئے لیکن آج تک دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں ان کی ماں کو کسی بھی فرشتے نے آ کر نہیں کہا کہ سلام تجھ کو. اور یہ سر بعد یسوع مسیح تھا جس کی ماں کو آ کر ایک فرشتہ سلام کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ فرشتہ سلام کرتا ہے. اور میرے بہنوں اور بھائیوں یہ فرشتہ جب مریم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے. روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا پیدا کرے گی اور اس بیٹے کا نام یسوع رکھنا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ایک بہت بڑا پیغام ایک بہت بڑی جب وہ خدا کی مرضی جو اس مریم کے وسیلہ سے اور روح القدس کی وسیلہ سے میرے بہنوں اور بھائیوں مریم تک پہنچا. کیا کہا کہ روح القدس کی قدرت اس پر نازل ہوگی. کس کی قدرت؟ مجھے بولے روح القدس کی قدرت اس پر کیا کرے گی؟ نازل ہوگی. اور میرے بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سی کلیسیاؤں کے اندر پاک روح کی ویلیو نہیں ہے. بہت سے لوگ
पाक रूह की अहमियत जो है वो नहीं देते, और बहुत से लोग रूह में जो है वो दुआ करने को अहमियत इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके अंदर इल्म की कमी है। इसलिए बहुत जरूरी ये बात है कि जब यीशु मसीह के इस दुनिया के आने का वक्त था तो उसने रूह कुदरत की कुदरत को नासिल किया। और मैं आपको बताऊं कि रूह कुदरत की कुदरत वो कुदरत है जो सहराओं में नदियों को जारी करती है। और जब आप देखते हैं पुराने अहदनामा के अंदर जब खुदा की रूह पानी की सतह पर झुंबश करती थी तो उस वक्त भी क्या था, लिखा है कि गहराव था और अंधेरा था और जमीन जो वीरान और क्या थी, सुनसान थी, और खुदा की रूह पानी की सतह पर झुंबश करती थी। और रूह के लिए जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वही कायनात को बनाने के वक्त जो है वो इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब जब रूह कुदस नाज़िल होता है, जब झुंबश होती है, तो मेरे बहनों और भाइयों ना उम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा हो जाती है, मौत के अंदर जब वो जिंदगी पैदा होती है, लानत के अंदर बरकत आ जाती है। और ये पाक रूह की झुंबश की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रूह कुदस की कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो ले, क्योंकि जब रूह कुदस जुम्बश करता है, जब पाक रूह जुम्बश करता है तो फिर गहराव के ऊपर जितना भी अंधेरा होता है वो सारा खत्म हो जाता है, क्योंकि रूह कुदस की कुदरत के वसीला से खुदा कहता है कि रोशनी हो जा, और वो रोशनी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो बहार हो, हमारी उम्मीदी के अंदर उम्मीद को पैदा जो है वो खुदा करे, तो मेरे बहनों और भाइयों हमें उस रोशनी की जरूरत है, हमें उस नूर की और उस जलाल की जरूरत है जो पैदाइश के वक्त था, जब दुनिया बननी थी, और जो यीशु मसीह की पैदाइश पर रूह कुदस की जो है वो हजूरी थी। आज हमें उसी रोशनी की और उसी झुंबश की जरूरत है। जब खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो मेरे बहनों और भाइयों मैं आपको बताता चलूं कि सूरज और चांद अभी नहीं बने थे, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। ये रोशनी किसी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं थी, किसी साइंस की वजह से नहीं थी, बल्कि ये रोशनी खुदा के मुंह के कलाम के सबब से थी, और कलाम यीशु नासरी है। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस रोशनी से फायदा उठाएं, और यही रोशनी जो है नए यरूशलेम के अंदर होगी। लिखा है मुकाशफा की किताब के अंदर, वहां तो ना सूरज है ना वहां पर चांद होगा, वहां पर बर्रा के चेहरे के नूर से, उसकी तजल्ली से, उसके जो है वो नूर के सबब से वो सारा शहर जो है वो रोशन होगा, और वो रोशनी बर्रा के सबब से होगी, यीशु मसीह के सबब से होगी। इसलिए हमें इन चीजों का जो है वो इस्तेमाल जो है वो करना ही जमीन पर, लेकिन अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों आपको इस रोशनी की जरूरत है, जिस रोशनी ने वो सारे नए यरूशलेम को रोशन कर रखा है। अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ इस बात को न रखें कि ठीक है ये क्रिसमस आ गया है, बड़ा दिन आ गया है, लेकिन हकीकी तौर पर इस क्रिसमस की खुशियों को, इस क्रिसमस की हकीकत को आज समझने की जरूरत है। और क्रिसमस का जो मतलब है वो यही है कि खुदा यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की जब वो इबादत की जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इस रोशनी को अपनी जिंदगी के अंदर लें, इन पावर्स को। और ये पावर्स क्या है? पहली पावर क्या है? खुदा का कलाम जो सादर किया गया, जो फरमाया गया। और दूसरा जो काम है वो रूह कुदस की जुम्बश है। जमीन की इब्तिदा से यही दो चीजें थी। क्या था? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था, और ये कलाम उसी रूह ने इस्तेमाल किया। आज मैं जिस पाक रूह की बात कर रहा हूं, और उस वीराने के अंदर जो है वो रोशनी आ गई, उम्मीद आ गई। आज इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर क्या था? खुदा का कलाम। ये कलाम होगा तखलीकी कुव्वत काम करेगी। और दूसरे नंबर पर रूह कुदस की जुम्बश, और तीसरे नंबर पर ये खुदा की तरफ से है, और तीसरे नंबर पर मरियम की तरह के ईमानदार। जब हम मरियम की तरह के ईमानदार हो जाते हैं तो हम कहते हैं, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और जब ये हम कहते हैं तो हमें फिर क्रिसमस जैसी खुशियां जब हमारे हिस्से में आती है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने जो चीज पढ़ी है कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और इस नाज़िल होने के लिए जो अब्रानी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो एप्रोखोमाई है। एप्रोखोमाई का मतलब है क्रिएटिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह की तख्लीक करने वाली, पैदा करने वाली कुदरत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये सारी बरकत हो तो मेरे बहनों और भाइयों, ये क्रिएटिंग पावर, तख्लीक करने वाली कुदरत आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो होना चाहिए। और जब रूह कुद्दस एप्रोखोमाई होता है तो फिर तख्लीक होता है। जब रूह कुद्दस एप्रोखोमाई होकर आपकी जिंदगियों के अंदर काम करता है मरियम की मानद, फिर आप हामला होते हैं और आप बहुत सी शादमानियों को फिर जन्म देते हैं, अब बहुत सी बरकत आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आते हैं। और खुदा जब जब भी रूह कुद्दस नाजिल करता है उसके अंदर खुदा एक मकसद रखता है। आमीन। जब जब रूह कुद्दस नाजिल होता है उसके अंदर एक मकसद होता है। अगर 35 कोस के रोज जो है वो शागिर्दों पर रूह कुद्दस नाजिल हुआ तो उसके पीछे भी खुदा का एक मकसद था, और मकसद ये था कि खुदावंद यीशु मसीह को प्रीच किया जाए, खुदावंद यीशु मसीह की मनाती की जाए और उसके बहुत से काम अहवाल दुनिया तक जो है वो पहुंचाए। ये खुदा का एक बड़ा मकसद था। और मैंने आपको पहले कहा कि बहुत से जब वो मसीही हैं, बहुत सी जब वो कलीसियाएं हैं जहां पर रूह कुद्दस की बात ही नहीं की जाती। जहां पर रूह कुद्दस की बात नहीं की जाती वहां पर खुदा का कोई मकसद भी पूरा नहीं होता, ना उसका मकसद पूरा होता है, ना उसकी तकमील होती है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरी है कि हम इस क्रिएटिंग पावर को, जो पैदा करने वाली कुदरत है, अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लाए। बहुत से सवाल आपके हो सकते हैं, बहुत से ऐसे सवाल। मरियम की मानद, मरियम के पास जब फरिश्ता आया, फरिश्ता कहता है कि सलाम तुझ पर, तू रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर नासिल होगी और तू हामला होगी और तू तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात बख्शेगा। मेरे अजीजों, ये जब बात सुनी तो मरियम जो है, मेरा एक अपना जाती तजुर्बा है। मरियम जिस माशरे के अंदर रहती थी वो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिस माशरे के अंदर रहती थी वो बहुत सख्त था। अगर कोई कुंवारी लड़की हामला पाई जाती उसको संसार करके मार दिया जाता था। और ये मरियम के दिल के अंदर एक सवाल था कि मैं कैसे हो सकता है। ऐसे उसने नहीं कहा कि ये किस तरह मुमकिन है। जब मैं समझता उसने ऐसे कहा होगा कि फरिश्ते तू मेरे साथ जब ये पैगाम मेरे पास लेकर आया है, तो खुदा ने जब इब्तिदा में आदम और हवा को बनाया और उसने कहा कि जाओ फड़ो फूलो, जमीन को ममूर और महकूम करो। और सबसे पहले जब उसने आदम को तख्लीक किया, उसने मिट्टी से तख्लीक किया, और जब हवा को तख्लीक किया उसी की हड्डी लेकर उसमें से तख्लीक किया। उस आदम को बनाए जाने की तकलीफ भी मैं जानती हूँ, और हड्डी से हवा पैदा हुई इसको भी मैं जानती हूँ, और फिर इनके सबब से जो दुनिया में इंसान पैदा होते हैं मैं उसको भी जानती है। ऐ फरिश्ते, ये कौन सा कानून है? आमीन। उसने पूछा होगा ये कौन सा कानून है? ये 3 तरीके तो मैंने बता दिए। मर्द और औरत से औलाद पैदा होती है, खुदा मिट्टी से बनाता है, खुदा पसली से बनाता है। ये चौथा कौन सा है? मैं किसी मर्द को नहीं जानती, मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, फिर फरिश्ता ये कहता है कि ये मरियम डरना, घबराना, खौफ न कर, ये मेरा नहीं, ये खुदा का पैगाम है। जब खुदा कहता है तो कुछ भी हो सकता है, वो सहराओं में नदियों को जारी कर सकता है। आमीन। जो कानून बनाता है वो तोड़ भी सकता है। उसने कहा ठीक है, खुदा ने आदम को बनाने का सिलसिला भी बनाया, हवा को पैदा करने का भी सिलसिला बनाया, फिर उनसे औलाद पैदा होती है वो भी ठीक है, लेकिन मरियम तो सुन, ये उसकी तरफ से हुक्म है जिसने ये तरीके वजूद किए, लेकिन ये खुदा की मर्जी है। और जो तू हामला होगी, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर ना कोई कुंवारी से पैदा हुआ था और ना दुनिया के आखिर तक हुआ था, होगा एक ही हुआ है और वो यीशु नासरी है।
एक ही यीशु नासरी जो कुंवारी से पैदा हुआ। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें बहुत जरूरत इस बात की है कि मरियम की मानद अपना आप खुदा के सामने रखे। देख, मेरे लिए तेरे कॉल के माफी को। आज जब मसीहियों से कोई कुर्बानी की, ये एक कुर्बानी थी, ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं क्या जवाब दूंगी, मैं फकीर फरीसियों को क्या जवाब दूंगी, मैं हुकूमत को क्या दूंगी जवाब, मैं अपने मोहल्ले वालों को क्या कहूंगी, मैं अपने रिश्तेदारों को क्या कहूंगी। ये सारे सवाल मरियम के ज़हन में असहाय होंगे। लेकिन जब रूह कुदस की कुदरत और जब एप्रोखमाई उस पर ठहरी तो सारे सवालों के जवाब मरियम को मिलते हैं। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं। आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी उलझने हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी बाइबल की बातें जो आपकी समझ से बाहर है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप हकीकी तौर पर बाइबल को समझना चाहते हैं तो रूह कुदस की डिमांड कीजिए और कहें कि खुदावंद, मैं उस मरियम की मानद कहती हूँ, खुदा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। उसने एक बड़े चैलेंज को फेस किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, ये वही कुदरत है जिसके अंदर, जिसके वसीला से मरियम जब वो हामला हुई, और ये वही एप्रोखमाई है जब ईद पेंतीकोस्त के रोज शागिर्दों पर आ ठहरा। लिखा है कि वो गैर ज़बानें बोलने लगे, आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी और वो खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करने लगे और लोग सुनकर ताज्जुब करते थे कि ये मेरी ज़बान में ये बहुत से खुदा के कामों का जिक्र कर रहे हैं। और खुदा का वो मकसद जो है वो पूरा हो गया। वही पतरस जब यीशु को सलीब दिया गया और भाग गया। ये वही लोग, ये वही शागिर्द जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था तो वो डर के वो भागे हुए थे और वो नजदीक भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रूह कुदस की कुदरत पेंतीकोस्त के रोज उन पर जाहिर हुई, उन पर नाज़िल हुई, और वही पतरस उस रूह कुदस की चुंबश के अंदर जब कलाम सुनाता है तो मेरे बहनों और भाइयों, 3000 बंदा एक ही दिन में यीशु मसीह को कबूल कर लेता है। कैसे? रूह कुदस की चुंबश, पाक रूह की हुजूरी जब बात आती है तो मेरे बहनों और भाइयों, टूटी फूटी जिंदगियों के अंदर जब पतरस कलाम को सादर कर रहा था, जब पतरस कलाम खुदा का बयान कर रहा था और वो टूटे दिल जुड़ रहे थे। और ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि आज लोग मौजज़ा पहले और यीशु बाद में। भाई अक्सर गीत गाते हैं कि यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, और लोग शिफाई लेकर पीछे हो जाते हैं और यीशु को भूल जाते हैं। बहुत जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इस बात को, एहसास को पैदा करें कि क्या मेरी जिंदगी भी तब्दील हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर आप अच्छा वो क्रिसमस ना मनाएं। हम कपड़ों के लिए और दूसरे अपनी ज़ाती जरूरतों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुदा भी कोई है। किसकी वजह से क्रिसमस, किसकी वजह से मना रहे हैं? यीशु की वजह से। किसकी वजह से? मुझे आवाज नहीं आई। किसकी वजह से मना रहे हैं? यीशु नासरी की वजह से। वो आया है इसलिए मना रहे हैं। और ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है जो है वो खुदा की कुदरत है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, रब्त की है वो लोगों की खातर जो गुनाह में मर रहे थे, जिनको कुर्बानियां पाक न कर पाई, उनके वसीला से, उनके लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर मुजस्सम होकर आया ताकि हम कसरत की जिंदगी के मालिक बन जाए। किसके मालिक बन जाए? कसरत की जिंदगी के। इसलिए हम रूह कुदस की कुदरत को अपनी जिंदगियों के अंदर जो वो बात, मैं आपको सच बताऊं एक बात, कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस की जुम्बश नहीं, रूह कुदस नहीं, पाक रूह से वाकिफ नहीं है, आप कभी भी खुदा की बादशाह को नहीं के अंदर जाना तो दूर की बात, आप उसके अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। निकोदेमुस से यही कहा गया। उसने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, और नए सिरे का मतलब तौबा और बपतिस्मा, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो रूह कुदस से भरना है। और जब हम पहले ही बात पर ठहर गए हैं
तो इसका मतलब है खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए निकोदेमुस से कहा गया, और वो छोटा मोटा बंदा नहीं था, वो शरीयत को अच्छी तरह समझता था और वो इस चीज से नावाकिफ था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज की भूख रखें, और ये पेंतीकोस्त के रोज एक भूख के साथ वही कुछ आज भी होते हैं। जब यीशु मसीह गए तो 500 लोगों को उन्होंने कहा था कि ठहरे रहो यरूशलेम के अंदर, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तब तक यहीं पर ठहरे रहो। और सिर्फ 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के अंदर 380 लोग जो वो वहां पर नहीं थे। इसका मतलब कि हम खुदा के रूल कुदस की जुम्बश को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बन ना जाए, और ये अबलीस चाहता है। खुदा के रूल कुदस की जुम्बश को अपनी जिंदगियों पर आने दीजिए, ताकि मेरी अजीजों आपकी जिंदगी के अंदर हकीकी टचिंग हो, हकीकी खुदा का जो है वो छूना हो। और मेरे अजीजों, जब खुदा छूता है तो सहराओं में नदियां जारी होती है। अक्सर खुदा के खादमीन जो है वो कलाम सुनाते हैं, जी फलां मसले के लिए अब कलाम खत्म हो गया, उठ जाओ। जो इस चीज को कबूल करता है उठ जाओ, और पूरा चर्च उठ जाता है। लेकिन हकीकत में वो समझते नहीं है, जैसे उठे हैं वैसे फिर बैठते हैं, और उसके बाद चर्च खत्म, बाहर। हमें हमारी गवाही इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिए कि जब खुदा से मुलाकात होती है तो वो जाकर पूरे मोहल्ले से, कौन? सामरी और पूरे मोहल्ले को खींच कर यीशु मसीह के कदमों में ले आई। ये होता है खुदा को छूना। खुदा जब छूता है तो हकीकत के अंदर आपकी जिंदगी तब्दील होती है, और जब खुदा छूता है तो हमारा अक्सर ध्यान जो है वो खुदा की तरफ नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुदा के कलाम को इस क्रिसमस पर समझें, इस रूल कुदस को जो है वो समझें। दूसरे नंबर पर पहले पे क्या था कि रूल कुदस की कुदरत तुझ पर नाज़िल होगा, और दूसरे नंबर पर लिखा था कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और साया डालने के लिए जो अब्रानी वर्ड है वो है एपिस्केजो, और एपिस्केजो का मतलब है टू इनवेलप समबॉडी, किसी को ढांप लेना। जब उससे कहा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो कुंवारी हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो उसने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझको इन्वेलप कर लेगी, तुझे ढांप लेगी। रूह कुद्दस तेरे अंदर होगा, रूह कुद्दस तेरे चारों तरफ होगा, और अगर तू तुझ पर हिट करना चाहे, तुझको अगर तू पत्थर भी मारेगा तो वो तुझे नहीं लगेगा, क्योंकि खुदा ताला की कुदरत तुझको छुपा लेगी। और एपिस्केजो वही वर्ड है जो यीशु मसीह नए एहतनामा के अंदर पहाड़ पर थे, और शगीदों ने जब देखा कि जब दाएं बाएं कौन थे? मूसा और एलिया। और लिखा है कि जब वो ऊपर गए तो पतरस ने कहा कि हमने मूसा और एलिया को देखा है, और उसने कहा कि हम यहाँ पर 3 डेरे बनाएंगे, और खुदा यीशु मसीह ने उनको मना किया। लिखा है कि यक एक बादल आया, एक कुदरत आई, एक साया आया, और उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? छुपा लिया। ये वही एपिस्केजो था जो मरियम पर था, और ये वही एपिस्केजो था तो यीशु पर बादल की सूरत में था। और जब यीशु मसीह छुपाता है तो मेरे बहनों और भाइयों, फिर कोई दुनिया का माई का लाल जो आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुआशरे के अंदर जो वो इसने जो तजर्बा किया था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मजहबी रवायात से बाहर निकलें, अपने मजहब से। और मजहब आपको कभी भी खुदा की हजूरी में लेकर नहीं जाता। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, मजहब खुदा की हजूरी में नहीं लेकर जाता। अगर कोई लेकर जाता है तो नए सिरे से पैदा और रूह कुदस की हजूरी और ममूरी आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जाने से रोकेगी भी नहीं। इसलिए शरीयत को समझो, ओके, समझना चाहिए। पिछले दिनों एक बात सुनी मैं कि हम पाक और नापाक की जो बात जो वो ज्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता चलूं
शरीयत पाक और नापाक का बताती है, लेकिन नया ऐहदनामा कहता है कि जो 12 साल से बीमार उस खून की बीमारी में औरत थी, वो जैसे ही इरादा करती है और यीशु मसीह को जाकर छूती है तो वो फौरन चंगी हो जाती है। कैसे? घर जाकर उसने नहाया धोया, फिर आके कहा कि मैं पाक साफ हो गई, फौरन। क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह जो कहता है वो उसी वक्त, तूफान उसी वक्त थमा, यार की बेटी उसी वक्त उठी, लाजर उसी वक्त कफन समेत बाहर आया। हमें शरीयत नहीं, हमें फजल बचाता है, हमें फजल ने पहचान बख्शी है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज रूह कुद्दस की कुदरत जो आपकी सिपर है, जो आपकी ढाल है, जो आपको दुनिया के हर काम से बचा सकती है, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए है, और इब्लीस का हर मंसूबा फेल हो सकता है अगर ये क्रिएटिंग पावर आगा और उसके बाद ये एपिस्केजो जो है आपकी जिंदगी के अंदर होगा, तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों में से होकर जो है वो गुजरेगा। रूह कुद्दस की कुदरत, एक कुंवारी लड़की मरियम खुदा के मंसूबे में आ गई। किस में आ गई? खुदा के मंसूबे में आ गई। किसकी मर्जी? खुदा की मर्जी से। आज हम सब जब यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम भी खुदा के मंसूबा के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ही इज वेटिंग फॉर यू। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरियम की मानद हो जो जब मेरी मर्जी को जो है वो पूरा करे। आपको बताऊं, मरियम एक ऐसा खाली और साफ शफाफ दिल, एक ऐसा दिल जो खुदा को भा गया, और उस पर जब रूह कुद्दस की कुदरत नाजिल हुई है, ये आपको बड़ा सुनकर अच्छा लगेगा। जब मरियम पर रूह कुद्दस की कुदरत नाजिल हुई है और वो अपनी रिश्तेदार अलिशबा के घर में गई, अभी उस पर कुदरत नाजिल हुई है और वो जब वो हामला हुई है, और जब ये गई है अपनी रिश्तेदार अलिशबा से मिलने के लिए, और लिखा है कि एक ही लफ्ज मरियम ने अलिशबा से मिलकर सिर्फ एक लफ्ज बोला, और अलिशबा जो है वो भी हामला थी, और वो 6 महीने से हामला थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पैदा होने वाला था, और सिर्फ एक लफ्ज बोला। क्या बोला? शलोम, सलाम। और एकदम से अलिशबा कहती है कि जैसे ही मैंने तेरे सलाम की, तेरे शलोम की आवाज सुनी, और मारे खुशी के ये जो मेरे पेट में बच्चा है वो मारे खुशी से उछल पड़ा। हालेलुया। एक कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है, कोई 1 घंटे का मैसेज नहीं जो मैं यहाँ पर सुनाता हूँ, सिर्फ एक लफ्ज। क्या था? मरियम जो खुदा की मर्जी में थी, और रूह कुद्दस की जुम्बश मसाशुदा मरियम, और जैसे वो पहुंची है, उसने कहा कि तेरे सलाम की आवाज ही से, किसे? सलाम की आवाज ही से। गौर कीजिए, अगर आप मसाशुदा हैं, अगर आप खुदा की मर्जी में हैं, आपके मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज बहुत सी नस्लों के अंदर बरकत को ला सकता है। ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी तालियां बजाएं। रूह कुद्दस के इंपैक्ट, जब रूह कुद्दस छूता है, जब रूह कुद्दस जुम्बिश करता है, तो फिर ये आता है कि आने वाली नस्लें भी मुतासर होती हैं। अभी यूहन्ना पैदा नहीं हुआ। अब अगली देखिए, एक आपको और भी मजा आने वाला है। क्या हुआ? उसने जब जैसे उसने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो मारे खुशी के उछल पड़ा, और एकदम से अभी तो फरिश्ता उसको कहकर गया है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा पैदा होगा, अभी तो चंद रोज हुए हैं, और जैसे ही उसने कहा अलिशबा ने कहा, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे यहाँ आई है। अभी तो यीशु है ही नहीं, उसको कैसे पता चल गया? उसको कैसे पता चल गया कि जो इसके पेट में है वो उसका खुदा है? आमीन। रूह कुद्दस की कुदरत के सबब से, जहां पर रूह कुद्दस की जुम्बश होती है, जहां पर रूह कुद्दस का कुदरत साया डालती है, मुकाशफात ज़हूर में आते हैं, और मुकाशफात
और आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों से देखने आपके सामने जो शख्स है वो परखा जाए, रूह कुद्दस की ममूरी के नीचे आ जाइए, रूह कुद्दस की कुदरत को कबूल कर लीजिए, उसकी झुंबश के नीचे रहिए। एना होवे कि वड्डे दिन ते झंडियां लांदे हो, हाथ से सिगरट होवे है ते पादरी साहब उची कलाम सुनाते पैने तो भाई हरी सुते ने, पूरी रात पीती जूसी, हाँ तो भाई हरी सुते ने। ऐसे लोगों पर कोई जुम्बश नहीं आती और ऐसे लोगों से खुदा का कोई रिश्ता नहीं है। ये मुझे बाइबल कहती है। सिर्फ लेबल लगाकर ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मसीही, अंदर क्या भरा है कच्चा, अंदर क्या भरा है इब्लीस के काम, खिलौने काम। खुदा चाहता है हम खालिस बनकर इस जमीन पर जिंदगी को गुजारें और उसका मकसद जो है वो यही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज किसी के लिए बरकत बन सकता है, आने वाली नस्ल की तब्दीली बन सकती है और आप पर मुकाशफात, यीशु मसीह के मुकाशफात जब खुलते हैं खुदा अपनी कुदरत को नासिर करता है। दूर दराज बैठे हैं, एक यहाँ का, एक वहां का, एक वहां का, इसकी बात कर रहा हूं, मैं मजूसियों की बात कर, दूर दराज। और मैंने आपको बताया था पिछली दफा के यरूशलेम से बैतलहम सिर्फ 6 मील का फासला है और ये दूर दराज से आए हैं कि हमने एक सितारा देखा है। सितारे का कैसे उनको पता चला? उन पर खुदा की हजूरी ठहरी, उन्होंने जब महसूस किया उस बात को। और ये जो पास बैठे हैं 6 मील दूर फासले पर, वो यीशु मसीह को देखने के मुश्ताक ही नहीं है, उनका दिल ही नहीं चाह रहा। उसने कहा ठीक है, बुलाया है, इसने बुजुर्गों को बुलाया, हाँ बताओ यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, 1 मिनट में बता दिया उन्होंने, क्योंकि शरीयत के अंदर इस बात का तस्करा है। और मजूसियों को तफ्तीश करके और मजूसियों को फील हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बादशाह, और वो निकल गए। और आज मसीहियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम शॉपिंग पर रात, मैं आपको बताऊं कि 3-3, 4-4 बजे तक लोग अपने फैशन कर रहे हैं, कपड़ों की फिक्र, प्लकिंग की फिक्र, हाँ सुबह में क्या बन गो, मेरा ऐ नहीं लगा के मेरी यो नहीं लगी, हाँ फिक्र, कईयों को मेहंदी की फिक्र। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करो, हमारा यीशु पैदा हुआ, आप सब करो, लेकिन वक्त से पहले करो। उधर गिरजा लगा होंगे, उधर साढ़े काम ही मुकदे नहीं। इसका मतलब हम अब क्रिसमस को हकीकत में समझते नहीं है। क्रिसमस का मतलब यीशु मसीह की इबादत है। आए हकीकी मसीही बने, और जब हम हकीकी मसीही बनेंगे तो मेरे बहनों और भाइयों खुदा का रूह कुद्दस जो वो नासिल होगा। फिर हम ऊंचे नहीं होंगे, फिर हम पस्त होंगे। आज किसी के वसीला से खुदा काम कर दे, वो रेवरेंड बन जाता है, कोई बिशप बन जाता है, कोई जो है वो डॉक्टर बन जाता है, बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी जब अपने ओहदे लिखते हैं, लोग ओहदे लिखते हैं। ये नौजवान यूहन्ना, नो चर्च, नो मिनिस्ट्री, कुछ नहीं है, नो टीवी चैनल, कुछ नहीं है, और पूरे इलाके को हिला कर रखा हुआ इसने। ध्यान से पढ़िए आना चीज को, पूरा इलाका हिला हुआ है इसकी वजह से। यहां तक कि रोमी हुकूमत ने इसको बाहर निकाल दिया इलाके में से।